trigonometry. The word trigonometry derived from Greek word, derived from the Greek word, derived from the Greek words. The words are tri, gono, metro. Trigonometry. इसका मीनिंग होता है means three. मीनिंग लिखते हैं mean three. Tri का मीनिंग three. गोनो मतलब sides. And metro का मीनिंग measure. measure मतलब माप. measure मतलब माप. इसे अपन इसको measure करते हैं. Trigonometry meaning is three sides measurement. Three sides measurement. ये हो गए सारे. And discuss about this x and y. This is the Cartesian plane. This is the Cartesian plane. And in this Cartesian plane, there is any point in the first quadrant. This is the point Q, x or y. This is any point x. This is any point x in first quadrant, and we join with the origin, and it makes an angle theta. Angle theta with the x-axis in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. So it gives right angle triangle. It gives right angle. We know that this point x is perpendicular to x-axis. This is x. This is x. And this is y. O to the A is x and O to B is y. So x and y move together, we get the point Q and gives a right angle triangle. It gives a right angle. So we discussed the ratio of the three sides of this right angle triangle. Ratio of this triangle. Ratio of the sides of this triangle. तो ट्रायंगल किससे क्यों हो सकती है? ट्रायंगल छोटी भी हो सकती है. Double is the triangle. It is also triangle. It's also triangle. Yes, sir. And this triangle फिर बता लो. अभी triangle. और आगे बता लो. अभी triangle. There are so many triangles. छोटी भी है. greater भी. But angle से angle theta से triangle बन रही है. But triangle का क्या कट रहा है? Side की ratio कट रही है. perpendicular base से फर्क आ रहा है. हाइपोटेनस होता है चेंजेस हो जा रहा है. चेंज की हो रही है. थ्री साइड्स एंगल उससे कट रहा है. तो इस चीज को अपन डिस्कस करना है इन दिस चैप्टर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल. वो ट्रायंगल की रेशियो की हो सकती है. ट्रायंगल की रेशियोस हो सकती है लाइक दिस. फर्स्ट P upon H, P upon H होता है. P upon B, B upon P, इधर attach upon P, इधर attach upon P. इससे क्या होती है? रेशियो 6 रेशियो होती है. या मैं P upon H बोलता हूँ, या H upon B बोलता हूँ. ठीक है? मैं B upon H बोलता हूँ, या H upon B बोलता हूँ. या मैं P upon B बोलता हूँ, या B upon B. और ये रेशियो आ गया क्या है? रेशियोस. इन रेशियो को थोड़ा ना देता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस. ना देता ट्रिग्नोमेट्रिक ratios with the reference of this angle theta. With reference of this angle theta. तो इस रेशियो को का नाम था that is sin theta. It is called sin. Sin की फुल फॉर्म है sin
आई एंड साइन थीटा। अगर थीटा नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं है, साइन इज नथिंग। साइन की है रेशियो ऑफ द पी एंड एच विद रिस्पेक्ट टू थीटा, रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा चेंज करिए होगी साइन थीटा। हाँ, अगर पी अपॉन एच है तो उनको बोलेंगे साइन थीटा, अगर बी अपॉन एच है तो उनको बोलेंगे कॉस बोलेंगे cos थीटा एंड इनको बोलेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू ये एप्लीकेशन है कोसाइन, इनको बोलते हैं कोसाइन एंड इनको बोलेंगे tan थीटा, ये फॉर्म है टेंजेंट called tangent. This is called tangent. और इधर इनको बोलेंगे cot थीटा और ये बोलेगा cotangent, cotangent एब्रिविएशन नाम होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड sec थीटा, secant थीटा, sec थीटा बोलेंगे secant, second full form है secant and that is cosec थीटा या cosecant थीटा। cosec full form है cosecant या कि cosec। तो ध्यान दो इस ट्रायंगल को थोड़ा साफ करके ड्रॉ कर देते हैं। We are discussing only first quadrant and right angle triangle. We are discussing the trigonometry in the right angle triangle in the first quadrant. In the first quadrant, there are four quadrants. But we are discussing in the first quadrant. The triangle is like this. A, Q, R, and that is called base. जिनको बोलते हैं B, perpendicular जिनको बोलेंगे P, hypotenuse H, hypotenuse H, ठीक है। H समझे, तीन साइड है, राइट एंगल है, थ्री साइड्स, बेस, perpendicular एंड हाइपोटेन्यूज। अगर मैं P अपॉन P बोलता दोनों की बोलूंगा, P अपॉन P की है 10, P अपॉन P की है 10, किएगा 10। और ध्यान वाले बच्चे उन्हें फार्मूले याद नहीं लगा, हाउ टू लर्न दिस फॉर्मूला, दो फार्मूला है, देखो ध्यान दो। पंडित, पतरी, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, याद हो गया। पंडित अपॉन हर बोले सोना का तो S for sign, S for sign, P for perpendicular and H for P upon H। समझ रहे हैं? S मतलब साइन, P upon H साइन, ठीक है। C for चांदी, C for cos, C for cos, B for base and H for hypotenuse, P upon H, T for tole, T for tangent, T for tangent, P for prasad and P for perpendicular, B for bole, B for this। और याद रखिए, उनका याद रखनी है। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट। अगर वो P अपॉन H है तो H अपॉन P क्यों है कोसेकेंट, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट एंड कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट। कॉस देखो कॉस है ये B अपॉन H होगी, H अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट एंड tan का रेसिप्रोकल है कॉट,
tan की है b अपॉन p अपॉन b, cot की है b अपॉन, समझ आई? तो मतलब this is the trigonometric ratios and there are 6 trigonometric ratios. These are the 6 trigonometric ratio and here sin theta, the meaning आ रही है कि sin multiply theta. ये मतलब आ रही है. This is not the meaning of sin theta is equal to sin multiply theta. साइन की है रेशियो ऑफ द साइन है विद रेफरेंस ऑफ थीटा है। समझ आ रहा है कि ਆਪਾਂ p अपॉन h को ਦਾ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले ली है तो उस p of h को ਕੀ बोलेंगे? ਉਹਨੂੰ बोलेंगे विद रेफरेंस ऑफ एंगल sin थीटा। बोलेंगे sin sin थीटा ਕੀ हो गया? जब दो साइडां राइट एंगल ਦੀ रेशियो p अपॉन h ਦੀ रहनी sin ਦੀ रेशियो ਕੀ रहनी है p अपॉन h। आइदर थीटा का ऐसे हो गए, थीटा का ऐसे हो गए, ये इधर हो गए, दो सारे हो सकते थीटा और राइट एंगल। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। मैं ठीक नहीं हूं, उनको ध्यान दो सारे बच्चे। अगर थीटा से बन गया, थीटा ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਬਾਕੀ ਆ ਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? perpendicular and 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? hypotenuse। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? hypotenuse। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੀਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ। 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? hypotenuse। and जितने थीटा के नाम की हो जाए बेस अरे पक्का वाला मतलब थीटा लगे परपेंडिकुलर वो भाई है मैं कह रहा है जिससे तुम खड़े हो ना पूरे सामने आज उसकी रहा है 90 डिग्री, उनके सामने दोबारा 90 डिग्री है, उसे जाके आप 90 डिग्री हम जाएगा ना। मैं उधर देख रहा हूँ बालक तरफ, तो बालक 90 डिग्री से खड़ा है, मैं बल से खड़ जाऊंगा तो मैंने वहां फर्स्ट 90 डिग्री नजर आऊंगा। ध्यान दिलो, सिंपल गल कही है। मैं इतने खड़ा तो सामने दीवार 90 डिग्री नजर आ रही है, मैं दीवार से खड़ा जाऊंगा तो मेरे फर्स्ट 90 डिग्री नजर आऊंगा। उस मोरी दीवार से चढ़ूंगा, मैं तो चढ़ूंगा मतलब जा रही है तो मेरा सिर पैरेलल नहीं होना। फर्स्ट जो जी सामने 90 डिग्री होनी, समझ आई? थीटा के सामने हाँ जी, थीटा के सामने 90 डिग्री रहना हमेशा। क्या 90 डिग्री सामने क्या रहना है? हाइपोटेन्यूज। तो थीटा नाम की लाइन की रहनी है बेस। ये मैं ट्रायंगल देख लो, जेडी में ट्रायंगल मतलब ये चीज हाइपोटेन्यूज चेंज होना, का दो चेंज होना, बाकी चेंज होना। थीटा देखो थीटा चेंज हो सकता है, इतना इधर चला गया परपेंडिकुलर किधर है, देखो बेस पे उधर चल गया। हाइपोटेन्यूज का हो नहीं रहा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪੈਡ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। सिंपल दी गल है, मैं इतने खड़ा, मैं दीवार देख रहा था सामने, तो दीवार से वो जी चीज़ 90 डिग्री खड़ी है और मैं दीवार जाके खड़ जा इधर देखा फर्श में तो मेरे जूते इस दीवार से 90 डिग्री हो जाएगी। नहीं नहीं समझ आ रही गल, पर छोटी गल है, मुझे बस समझ क्यों नहीं आ रही, मैं दीवार चढ़ नहीं सकता है ना। मतलब भी सोचो ना कि यार मेरा कमरा है ना, आप फर्श से है एंड आप फर्स्ट है ना बोल नहीं है, आप फर्स्ट मिला के दीवार काटी। अगर आप सेक्सी होते ये दीवार 90 डिग्री बट सर तेरे पैरेलल है तो दीवार की डिग्री का स्पेस है वो हाइपोटेन्यूज लाइन ऑफ साइड जो मैं देख रहे हैं, मेरे मैं कुछ चीज देख रहा ना, मैं देख रहे हैं मैं आज से ना एक लाइन जा रही है, ये लाइन है वो हाइपोटेन्यूज वो बेस तो की होगी हाइपोटेन्यूज मतलब बेस से। अच्छा क्लियर? देखो सिंपल गल है, गल समझ आने गल है कि जब तुम फर्श पे है ना, फर्श ऐसे खड़े हैं तो सामने 90 डिग्री ये गल ठीक है ना, वो सामने 90 डिग्री है, लेकिन लेट मी अगर मैं इधर खड़ा है वो सामने 90 डिग्री है। वो इतना करिए कि इस कमरे को घुमाइए ऐसा, ये दीवार ऐन खड़ी होगी वो दीवार थले आ जाएगी। हां जी तो जी चीज परपेंडिकुलर सी वो बेस होगी, जी बेस भी होगी परपेंडिकुलर, वही कहते हैं
समझ आई? इमेजिनेशन सोचना पैना थोड़ा देर, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज के फार्मूले साडे किहड़ी एक्सरसाइज है? फर्स्ट एक्सरसाइज। बाकी आप छोटे छोटे फार्मूले पढ़े हैं जिदा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a क्यूब - b क्यूब, वो तो रहने रहने वो हर था यूज होगा, ठीक है। सो नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन याद रख लो सब कुछ लिखे नहीं, लिख लो वीडियो बंद कर लो, लिख लेंगे।